Students, this is the story of Taro's Reward. ये तारो रिवार्ड, तारो का पुरस्कार नामक कहानी है जिसका सारांश हम तुम्हें बताने जा रहे हैं। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ ए वुड कटर हु लिव्ड समवेयर इन द किंगडम ऑफ जापान, जो जापान के किसी शहर में रहा करता था। Once it was severe cold. बहुत जाड़े का दिन था, बहुत भयंकर यानी कठिन जाड़ा था। He was simply a woodcutter. वो एक लकड़हारा था। He earned his livelihood by chopping wood from the forest. जंगलों से वो लकड़ियाँ काट काट कर लाता था और उससे अपनी ज़िंदगी चलाता था। Once when it was very cold, I mean severe cold, his father desired to have a cup of sake, which is the finest, I mean wine of the world. एक दिन जबकि भयंकर ठंड थी, उसके पिताजी ने इच्छा जाहिर की, काश मुझे एक कप सेक मिला होता। सेक एक प्रकार का बहुत ही स्वादिष्ट और कीमती शराब हुआ करता है, विच ही वॉज अनेबल टू बाई इवन ए सिंगल ड्रॉप ऑफ सेक, जिसे वो खरीद पाने में बिल्कुल असमर्थ था। नेक्स्ट डे ही डिसाइडेड टू गो टू द फॉरेस्ट and to chop wood as much as he could. He could earn a lot of money so that he could buy a bottle of sake for his old father. अपने पिता के लिए वो एक बॉटल सेक का खरीद सके, इसके लिए दूसरे दिन वो जंगल गया और लकड़ियाँ काटता गया। Very soon he became tired and thirsty as well. Suddenly he heard the sound of rushing water. अचानक उसने बहते हुए पानी की आवाज़ सुनी। He rushed towards the sound of the rushing water. उस चलते हुए पानी, गरजते हुए पानी की धार की तरफ वो बढ़ा। Very soon he found a little stream which was flowing behind a big rock. जो एक बड़े से पत्थर के पीछे से बह रहा था, एक छोटा सा झरना। He tasted the water of the stream. उसने उस झरने के पानी का स्वाद लिया, चखा। He was amazed. He was extremely happy to know that it was not simple water, but it was delicious sake. He ran towards the trees where he had kept his pitcher. वो जहाँ उसने घड़ा रखा था वहाँ के लिए वो दौड़ा हुआ गया, घड़े को लाया, and he filled the pitcher with the finest sake of the world. दुनिया की सबसे अच्छी सेक उसने उस घड़े में भरी, and he rushed towards his village, और अपने गांव की तरफ दौड़ा। After when he reached his home, he gave a cup of sake to his old father, who started dancing in the middle of the floor when he tasted the sake. It was really a delicious sake. Very soon the story spread in the village. बहुत जल्द ही गांव में ये बात फैल गई और दूसरे दिन सारे लोग, all people of the village rushed towards the stream to bring the finest sake as much as they could. जितना वो लोग ला सकते थे उतना बड़ा छोटा बर्तन लिए हुए सब फिर झरने की ओर दौड़ा। बट इट वॉज ए मैराकल, यह एक जादुई बात थी। दे
could not find there any shake. It was simply cold water. When they tasted the water of the stream, जब झरने के पानी का उन लोगों ने स्वाद लिया तो वो साधारण रूप में एक साधारण सा पानी ही था. इट वॉज नॉट रियली सेक. यह सेक नहीं था. दैट्स वाई दे थॉट दैट तारो हैड चीटेड दैम. उन लोगों ने सोचा कि अब तारो को बचने नहीं देंगे, उसने हम लोगों को ठगा है. दे वांटेड टू ड्रोन तारो इन द स्ट्रीम. तारो को डुबोना चाहता था, बट तारो hid himself behind a big rock and saved himself from the villagers. अपने आप को उसने एक बड़े से पत्थर के पीछे छिपा लिया और गांव वालों से बच गया. After when the villagers departed from there, he tested the water of the stream again and again. And after when he tasted, he was amazed to know that the water was really still the finest shake of the world. अभी भी वो शेक ही था. उसे बहुत आश्चर्य हुआ. फिर वो घर गया, अपने पिताजी से सारी बात बताई. लेकिन ये बात फिर जंगल की आग की तरफ फैली और ये कहानी इट रीच्ड टू द एम्पेरर ऑफ जापान, who called upon Taro and rewarded him with 20 pieces of gold coins for his worthiness towards his father. Friends, it is really a good story. You already have been given all the question answer of this lesson previously, but now it is only a summary of this story. Please read it confidently, go through it seriously, and whenever you find, जब कभी भी तुम कहीं कोई परेशानी पाते हो तो तुम मुझे फ़ोन कर पूछ सकते हो. मैं तुम्हें फिर से बताऊंगा. ये कहानी अच्छी है. इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने माँ पिताजी के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, देश के लिए समर्पित होना चाहिए. दिस इज़ द एंड ऑफ दिस स्टोरी. गो थ्रू द चैनल एंड सब्सक्राइब इट.